Good evening, all of you. We will start today's session. First slide has got some corrections because I could not change date and all, but the lecture is 45th. This is, we all know that the content is from the internet. This is something that is very important when we talk about this astronomy course. These things we keep repeating that 88 constellation or 27 nakshatras or probably well sun signs, 8 planets, around 5,500 number of notable or uh, stars which are visible by naked eye should be at least known to us. Then meteor showers, 10, 12, there are many, but prominent meteor showers we are mentioning. And then galaxies, dwarf galaxies, deep sky objects, so many things. Okay. Today we'll be talking about one important constellation called Norma, that is Ankani, that is basically carpenter's tool of measurement, basically ruler and 90 right angle. टेलीस्कोपियम दूरबीन आप सबको पता है, आपने इस्तेमाल नहीं किया होगा बट पता है. This that is what we are going to MCQ and all we have shifted to Wednesday. आज ज्यादा देर तक क्लास नहीं लेंगे हम लोग. एक 45 minutes, 40 minutes we will continue. This why I'm showing you every time is the intent is very clean and clear. That probably you should know what all constellations we keep finishing. So what all things we are left with, etc., etc. So we can just go through those details. If it's not visible, then probably you can zoom in because zooming in facility exists in your phone as well as from my end. I can do that, but that's not required, it seems. Now let's see whether Norma exists in this or not. No, it's not there. Okay, this is this sky which doesn't contain Norma constellation or telescope. Telescoping is here. Yeah, you can see. If you can see my mouse movements here, then here is telescoping. Okay. Now there is Indus, but Norma is already gone to the city. Let's go further. Now here we can see. Now here you can see many. So let's zoom and see what all things we can see here. I'm zooming so that is something will be visible. Just remember this part of it. There is something here. Okay, the name doesn't exist here. We'll get it into the next slide. यहाँ पे भी कुछ है. तो ये जो दो पॉइंट्स माउस में जहाँ मूव कर रहा हूँ, एक यहाँ की चीज और एक नीचे की. ओके, इन चीजों को आप याद रखेंगे because these things what we are going to study today. Okay, so this is the sky which I said around September 15th of the 2021. No connection today because today we are already into the February. So sky in August of around 7:30 for India or Panvel. Here you can see the names. Here you can see that telescoping. Okay, here it is normal. So now I am again going to zoom in so that you will see the actual locations. थोड़ा बड़ा इसलिए जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि आपको सचमुच समझ में आए कि यहाँ पे टेलीस्कोपियम तो लिख दिया बट कहीं टेलीस्कोपियम नहीं पीएम नहीं दिखेगा आपको. या करोना ऑस्ट्रेलिस जो है, ओके, ये कर्व है, इसका टेलीस्कोपियम के साथ कुछ संबंध नहीं. टेलीस्कोपियम कहाँ है? तो यहाँ ये जो एस सी ओ के बीच में एक लाइन है वो टेलीस्कोपियम है. अभी नीचे जाएंगे तो आपको नॉर्मा नाम का ट्रायंगुलर टाइप का थोड़ा शेप तो दिख पाएगा. So this is what which is almost not visible. Almost not. Okay. We'll be studying today because हमारा उद्देश्य है we'll be studying approximately all constellations around 88 constellations. तो ये आप देख सकते हो. आई एम टेलिंग यू एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कि ये अगस्त महीने का 1930 का स्काई है 7:30 बजे का. एंड देन प्रोबेबली इफ दिस साइड
ओके, कॉमा बेरेनेस है, जहां मैं माउस घुमा रहा हूँ बॉटम ऑफ द पेज, दैट इज सपोज west, then this is southern direction. In southern direction, you will see rising of the telescopium, then era, norma, and then they will be setting very nearby. तो आप देख रहे हो कि इनका जो पीरियड है, द पीरियड फॉर विच दे विल बी अवेलेबल इन स्काई, हॉराइजन से हॉराइजन के बहुत करीब है. एंड देन प्रोबेबली यू शुड अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट द intensity or magnitude or visibility of this particular stars in this constellation is very poor or feeble. तो ये चीज दिमाग में रख के हम लोग आगे बढ़े. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि सपोज आई गो क्लोजर टू द अप्रैल, वी आर इन मार्च, अप्रैल फरवरी, वी विल गो इन मार्च, देन अप्रैल. अप्रैल अगस्त में हमको स्काई दिखता नहीं, कि रेनी सीजन होता है हमारा, मोस्ट ऑफ द सदर्न और वेस्टर्न इंडियंस का. तो हम अप्रैल में देखना चाहते तो देख सकते हैं. तो अप्रैल में सुबह 3 साढ़े 3 बजे के आसपास आपको दिखेगा कि ये साउथ साइड है, अभी आप देख रहे हो. ओके, अभी मैं इसको फिर से थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये सैगिटेरियस है, इधर वृश्चिक यानी स्कॉर्पियस है, इधर वो टेलीस्कोपियम वाला लाइन दिख रहा है, और ये साउथ है. यहाँ में जहाँ माउस रखा है वो साउथ डायरेक्शन है. 20 अप्रैल के सुबह के 3:33 हुए हैं, एंड आई एम एबल टू सी हियर टेलीस्कोपियम. ओके, देन आई एम एबल टू सी द नॉर्मा आल्सो. जहां मैं माउस घुमा रहा हूँ नॉर्मा इस तरफ, कोरोना ऑस्ट्रेलिस की नीचे 4 o'clock पे टेलीस्कोपियम है. तो मतलब आप समझ सकते हो कि जो मैं बोल रहा हूँ वो एक तरीके से आपके लिए भी शायद थेरोटिकल स्टडी ही रहेगा, जब तक हम उस सपोर्टिव स्काई कंडीशन में न जाए जहां पे 4 मैग्नीट्यूड के तारे आराम से देख पाए वगैरह वगैरह, या फिर उस तरीके का बाइनोकुलर हो, या उस तरीके का एटलीस्ट टेलीस्कोप हो, तो डीप स्काई ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशंस के हम देख पाए. सो हमने ये समझ लिया कि जुलाई अगस्त इज द राइट पीरियड अगर शाम को देखना है तो. अगर थोड़ा सुबह देखना है तो इवन अप्रैल इज द राइट पीरियड. तो ये हम बात कर रहे थे वो दो कॉन्स्टिलेशन की जो आज हम थोड़ा पढ़ने वाले. नॉर्मा, अंकनी. जब मैं पहली बार हिंदी मराठी ट्रांसलेशन ये सुना तो मुझे कुछ नहीं समझा था, बट टुडे व्हेन आई से नॉर्मा, अंकनी, देन नाउ आई नो व्हाट इज इट. यहाँ पे आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, सॉरी, बट ये देख के उनको समझेगा कि ये राइट एंगल है. इसमें रूलर मतलब स्केल भी है, राइट एंगल भी है. ये ड्राफ्टर जैसा लग रहा है, मिनी ड्राफ्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग के फर्स्ट ईयर वाले दो सब्जेक्ट होते हैं ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग 1, इंजीनियरिंग ड्राइंग 2, बट एक्चुअली वो नहीं है. ये कारपेंटर का टूल है जिससे वो राइट एंगल चेक करता है. तो ये कारपेंटर का टूल है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे. ये उसका पैटर्न दिखाया आप लोगों को, आगे जाके उसके एक्चुअल चित्र भी हम देख सकते हैं. Here you can see, and I'm going to keep this in front of you because ये है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का दिया हुआ मैप. भले ही ये आज का है, तो इस मैप में जो है वही नॉर्मा है, बट यू कैन सी द वेरी वेरी क्लोजनेस ऑफ स्कॉर्पियस कॉन्स्टिलेशन ऊपर की तरफ. नीचे की तरफ देखो तो सिरसिनस है, मतलब कर्कटक, मतलब जो दो पॉइंटेड वाला कंपास में आपके रहता है ना, वो है. इधर ट्रायंगुलम ऑस्ट्रेलिया है. एरा, एरा मतलब पीठ, व्यास पीठ जैसा, ज्ञान पीठ. तो मतलब ये वो है, ये लुपिस है. और यहाँ पे इस तरफ आप देख सकते हो, मेरे ख्याल से सैगी होगा. तो यहाँ पे एकदम ही फीबल, ये भाई आपको जो मैग्नीट्यूड दिख रही है, फिर 0 दिख रही है, फिर 1 2 3 4, आप देख सकते हो ये सारे मैग्नीट्यूड 4 कैटेगरी में फॉल होने वाले स्टार्स है नॉर्मा कॉन्स्टिलेशन के. तो होपफुली आप ये सब चीज से परेशान नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिलेशन के कंटेंट में कोई दिखने जैसी चीज नहीं है, बट पढ़ने जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो शायद हम पढ़ सकते हैं. लेट्स गेट इनटू दैट पार्ट ऑफ इट. थोड़ा मैं थ्योरी बताऊंगा आपको. आई होप मेरी आवाज सबको आ रही है. नॉर्मा इज द कॉन्स्टिलेशन
which designates the Carpenter Square. It is located in the southern hemisphere. आपने देखा कि वो साउथ की तरफ था ऑलमोस्ट, है ना कॉन्स्टिलेशन, तो ये सदर्न हेमिस्फेयर वाली कॉन्स्टिलेशन है। इट इज कंप्लीटली विजिबल लिखा है, बट विजिबल मतलब दिख सकती है, क्योंकि 6 मैग्नीट्यूड तक के तारे देखे जा सकते हैं। अभी यहाँ पे हम 4 वगैरह की बात कर रहे थे, एक्चुअल ऑफिशियली वो विजिबल कैटेगरी में आते हैं नेकेड आई के, बट दिखते नहीं है। तो जो मेरी जानकारी है, जो मैंने नोट्स बनाया उसमें, ये जो इंटरनेट कंटेंट बोलता है वो बोलता है इट इज कंप्लीटली विजिबल एट लैटिट्यूड्स साउथ ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम अप्रैल थ्रू जून। तो हमने वो देखा है, प्रैक्टिकली देखा जब हम स्काई मैप देख रहे थे। इट इज स्मॉल कॉन्स्टिलेशन ऑक्यूपाइंग हार्डली 165 स्क्वायर डिग्री ऑफ द स्काई। उसकी वजह से सिर्फ 165 स्क्वायर डिग्री बहुत ही छोटा होता है। सबसे छोटा कॉन्स्टिलेशन जो है क्रक्स, त्रिशंकु, वो हार्डली एक 68 स्क्वायर डिग्री का है। ये 165 है, मतलब उससे तकरीबन 100 स्क्वायर डिग्री ज्यादा है। फिर भी आउट ऑफ 88 कॉन्स्टिलेशन ये 74th वाले नंबर पे आता है। तो मतलब बहुत दूर है, बहुत छोटा है। इट इज bordered by Scorpius to the north, Lupus to the northwest, Circinus मतलब कर्कटक to the west, Triangulum Australis to the south, and Era to the east. There are no myths associated with the constellation of the Norma. It is one of the 14 southern constellations named by the Abbe Nicholas de Laïquil. अब ये निकोलस दी लाइकिल ने 18th सेंचुरी मतलब 1750 के आसपास इसको नामकरण किया। इट रिप्रेजेंट्स कार्पेंटर्स टूल्स, ओके, कॉल्ड स्क्वायर और लेवल। ओके, ओरिजिनली इट वाज कॉल्ड इक्विरिटी एट ला रिगले। अभी ये मुझे भी नहीं मालूम, लैटिन बिटिन होता है, सब फ्रांसीसी नेम होते हैं, विच मीन दैट इट इज अ स्क्वायर विथ द रूल, ओके, रूलर, ओके। लैटिनाइज्ड, हाँ मैं बोला ना, ये लैटिन, लैटिनाइज्ड टू नॉर्मा, नहीं, लैटिनाइज्ड टू द नॉर्मा रेगुला एंड इवेंचुअली शॉर्टन टू द नॉर्मा। ओके, मतलब पहला वाला जो नाम था उसको लैटिनाइज्ड किया गया, देन इट फाइनली शॉर्टन किया गया ताकि लोगों को समझने में, बोलने में आसानी हो। एंड उसके डिस्कवरी से अब तक उसकी साइज भी रिड्यूस हो गई है। कुछ चीजें प्रीवियसली अल्फा बीटा जो इस कॉन्स्टिलेशन के थे स्टार्स, उनको स्कॉर्पियस कॉन्स्टिलेशन में ऑलरेडी जोड़ा गया, डाला। Norma is composed of the faint stars. In fact, it contains no stars brighter than magnitude 4. तो 4 मैग्नीट्यूड से बड़ा इसमें कुछ भी नहीं है। और गामा 2 नॉर्मी जो है नॉर्मा विथ विजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ 4.02, मतलब एब्सोल्युटली नॉट विजिबल, ऐसा कि आप बोल सकते हो हॉराइजन लेवल। ये जो गामा नॉर्मा है 2, वो येलो जायंट स्टार है, अप्रोक्सीमेटली 127 लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ। ओके, गामा 1 नॉर्मा जो है उससे इसी कॉन्स्टिलेशन का विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4.98। इट्स आल्सो येलो व्हाइट सुपर जायंट, अप्रोक्सीमेटली 1436, 1400 लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ। ओके, ये नेकेड आई के लिए दे अपीयर एज अ सिंगल स्टार, बट दे कैन बी इजीली सेपरेटेड विद अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स। मैं आपको बोला था कि मैंने 2-4 महीने पहले बड़ा सा बाइनोकुलर लिया है, तो काफी चीजें जो ऑप्टिकल डबल्स वगैरह हैं उनको तो हम इजीली सेपरेट कर पाते हैं। उसका स्टैंड नहीं लिया है, तो बड़ा होने के कारण चीजें काफी हिलती हैं, क्योंकि स्टेडी रख नहीं पाता मैं उसको। तो अपना टेलीस्कोप, अपना बाइनोकुलर, और कुछ तो हो गया मेरे फोन, आई डोंट नो, नेटवर्क चला गया है लगता है। आपको भी आवाज आ रही है? मुझे नहीं पता। चैट बॉक्स में लिखो भाई लोग, आवाज आ रही है क्या नहीं। ये प्रेजेंटेशन चला गया। वॉइस इज ब्रेकिंग, तो मेरे यहाँ कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है लगता है। हाँ, मैं नेटवर्क ऑफ करके चालू करता हूँ फिर से।
ठीक है, मैंने नेट और मैं मोबाइल नेटवर्क से कोशिश कर रहा हूँ, तो देखते हैं आपको आवाज ठीक से आती है क्या। और प्रेजेंटेशन मेरे पास दूसरी सिस्टम नहीं है, तो लैपटॉप से ही लेना पड़ेगा। वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उसको अभी एटलीस्ट 1 मिनट, उसको मजा ही नहीं आ रहा, उसको खुली कर देता। तो देखते हैं, एस्ट्रोनॉमी क्लास, देयर गुड पीपल, उनका प्रॉब्लम। थोड़ी देर के लिए मुझे मेरी तकलीफ, इधर पूरा नेटवर्क चला है। नो इंटरनेट। सिक्योर। आया नेटवर्क। हम्म। बिल्कुल चल। अच्छा, तो नेटवर्क आया, अभी आवाज आ रही है ठीक से? सर पिकड़े सर और या अविरत, इट्स क्लियरली ऑडिबल? ओके। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो फिर से मैंने प्रेजेंटेशन के लिए वाईफाई यूज कर रहा हूँ और मेरे बोलने के लिए मोबाइल नेटवर्क यूज कर रहा हूँ। तो आप देखिए कि इसमें गड़बड़ हो जाता है तो आप थोड़ा माइक ऑन करके पिकड़े सर या अविरत या भव्या, आप कोई भी बोल सकते हो, सब लोग एट ए टाइम मत बोलो। ओके। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मा कॉन्स्टिलेशन। दिखता कुछ नहीं है, पर बात मैं करूंगा कम से कम 5-10 मिनट, क्योंकि वो जरूरी है कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें मालूम हो। तो हमने ये देखा कि स्टार्स तो बहुत कुछ है उसमें। अब ब्रेक हो रही थी मेरी आवाज, मैंने सुना। तो इसमें ब्राइट नंबर 1 गामा 2, फिर ब्राइट नंबर 2 गामा 1, फिर थर्ड ब्राइटेस्ट स्टार इन द कॉन्स्टिलेशन इज एप्सिलॉन नॉर्मा विथ मैग्नीट्यूड ऑफ 4.52, तो 4.98, 4.52, 4.02, इसी रेंज में ये सब चल रहा है। ओके। 400 लाइट ईयर्स दूर है। इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन में मेसियर ऑब्जेक्ट्स है नहीं। ओके। खुद ही इतना फ्यूबल है। बट डीप स्काई नोटेबल ऑब्जेक्ट्स है। जैसे कुछ नाम यहाँ दूंगा, फिर जब हम चित्र देखेंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। द वन वेरी फेमस ऑब्जेक्ट इज द एंट नेबुला। ओके। इट्स अ प्लैनेटरी नेबुला लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 8000 लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ। इट्स प्लैनेटरी नेबुला इज अनविजुअल। क्या है इसमें? बाइपोलर है, कंटेनिंग टू डिस्टिंक्ट ग्लोब्स। फिर और एक चीज है जो डीप स्काई ऑब्जेक्ट में आती है इस पर्टिकुलर इसमें, उसको फाइन रिंग नेबुला बोला जाता है, और शेपली वन। अभी ये शेपली जो है या एंट नेबुला का एक दूसरा नाम भी है। ये सारे नाम जिस साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया उनके नाम से आते हैं। देन नॉर्मा क्लस्टर नाम की एक चीज है, और बहुत सारे 2-3 क्लस्टर यहाँ पे। और भी एक चीज है कि यहाँ पे ये क्लस्टर ठीक है जो अलग टाइप के, बट ग्लोबुलर और ओपन क्लस्टर भी यहाँ बहुत है। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने बोला ही आपको, ये सदर्न हेमिस्फीयर का SQ3 का लैटिट्यूड +30 डिग्री टू द -90 डिग्री का सदर्न साइड का कॉन्स्टिलेशन है। एंड ये दिस बिलोंग्स टू द लकाइल फैमिली, जो आपको मैंने बताया कि निकोलस लकाइल ने इसको ढूंढा, और उसने एक केप ऑफ गुड होप नाम की एक जो जगह है साउथ अफ्रीका में, वहां से ऑब्जर्वेशन करते वक्त बहुत सारी चीजें ढूंढी गई है। तो इसमें अंटिलिया, सीएलम, सिरसिनस, फोरनैक्स, हॉर्लोगियम, मेंसा, माइक्रोस्कोपियम, ऑक्टन्स, पिक्टर, रेटिकुलम, स्कल्प्टर और टेलीस्कोपियम। आई होप कि ये सारी नाम जो मैं बोलता हूँ, ये आप एटलीस्ट रिवाइज करते होंगे पुराने लेक्चर्स को गो थ्रू करके। अब तक अगर हम 45 लेक्चर्स तक पहुंचे हैं,
तो 45 लेक्चर्स मतलब हफ्ते में एक लेक्चर भी रिवाइज करेंगे जो हो रहा है, ये कभी नहीं हो रहा है। आजकल 2 हफ्ते में वगैरह हमारा लेक्चर हो रहा है, तो हर हफ्ते एक लेक्चर अगर रिवाइज करोगे तो भी 45 वीक्स लगेंगे, मतलब 11 महीने लगेंगे, है ना। 4 हफ्ते होते हैं ना, 4, साढ़े 4, 5 वाला, तो उस हिसाब से आपका रिवीजन का समय बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोग नहीं कर रहे हो ये मुझे पता है, अभी आप छोटे तो हो नहीं कि इसके लिए डांटा जाए, तो इट्स ओके। लेट्स गो फर्दर। हम बात कर रहे थे इसके अंदर जो स्टार्स है उनकी, हमने गैमा नॉर्मा की बात की, ऑप्टिकल डबल स्टार है 1 और 3 की कॉम्पोजिशन वाला। वैसे ही गैमा 2 भी एक क्लोज ऑप्टिकल बाइनरी है 127 लाइट ईयर्स की दूरी वाला। फिर हमने गैमा 1 की बात की, उसका उसको 140 1436 लाइट ईयर्स की दूरी पे। एनीवेज दिस इज लिटिल बोरिंग, ये पार्ट मैं आपको इसलिए सुनाता हूँ कि जब आप कभी वीडियो देखे तो आपको फिर से कोई थ्योरी यूज न करना पड़े, जो आपने सुना उसी को आप सिर्फ क्रॉस चेक कर सकते हो इंटरनेट पे। और कभी कभी वैल्यूज चेंज होती है बिकॉज ऑफ द सम प्रेसाइज ऑब्जर्वेशन अवेलेबल। जैसे हमने सुना कि अभी पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप और रिलेटेड जो बहुत सारी प्रोब्स गई उनके हिसाब से हम ये डाटाबेस जनरेट करते थे। बट प्रेजेंट स्टेट नाउ वी हैव वन वंडरफुल टेक्नोलॉजी कमिंग अप, जेम्स वेब टेलीस्कोप। वो तो बहुत ही रिफाइंड डाटा हमारे पास पहुंचाएगा इस मामले में भी। और दूसरा, फाइंडिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड रिलेटेड द कंडीशंस ऑफ द यूनिवर्स, एनर्जी ट्रांसमिशन कैसे हुआ, प- पहले वाले तारे गैलेक्सीज कैसे बने, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अभी मैं यहाँ सिर्फ लिस्ट आउट करूंगा कि अगर एप्सिलॉन नॉर्मे की बात करें तो मैग्नीट्यूड 4.53 है, आयोटा 1 नॉर्मे की बात करें तो 4.63 है, ईटा नॉर्मे की बात करें तो एक अप्रोक्सीमेटली 4.65 है, डेल्टा नॉर्मे इज अप्रोक्सीमेटली 4.73। मतलब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ कि इसी चीज को अगर मैं बोलूं, यहाँ आप देख रहे हो गामा गामा, ईटा, थीटा, डेल्टा, एप्सिलॉन, टप्पा, जीटा, झाई जिसको आप बोलते हैं, ओके। ये सारे 6087 कुछ अलग चीज है, 6025 भी अलग चीज है। यहाँ हम जो स्टार्स देख रहे हैं, म्यू, लैम्डा, ये सारे इतने छोटे हैं कि तकरीबन 5 टेंडिंग टू 5 मैग्नीट्यूड वाले हैं। सो वी विल कीप देम ऑल। कुछ बहुत सारे एच डी मतलब हाई डेंसिटी ऑब्जेक्ट भी है, उनके नंबर्स होते हैं 1424, 15, 148, 156, ये सारी चीजें इसमें है। बट जो मेसियर को दिख सके ऐसे ऑब्जेक्ट भी कभी नहीं मिले, और अभी भी जो मिल रहे हैं वो डीप स्काई ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। So if this is the International Astronomical Union map of the Norma Ankani Carpenter's tool, तो अभी चलेंगे आपके इंटरेस्टिंग पार्ट में, जिसमें सबको इंटरेस्ट होता है क्योंकि ये चित्र बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। तो अभी आप यहाँ देखोगे एंट नेबुला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ऐसा लोग बोलते हैं, जबकि मुझे थोड़ा इश्यू लगता है कि जो कोई 13-14 मैग्नीट्यूड पे आ गया उसके लिए आपको 10, 12, 15 इंच का टेलीस्कोप होगा तो भी कुछ ठीक से दिखेगा कि नहीं मालूम। ये जो आपको चित्र दिखा रहा है वो अलग तरीके से लिया गया, दिस इज फ्रॉम द सम स्पेस टेलीस्कोप। हम जमीन से जब देखते हैं तो ये चीजें इस तरीके से नहीं दिखती, एब्सोल्युटली नॉट रीडेबल कैटेगरी में होती है। अभी ये मैं बात कर रहा हूँ मेरे वाले 5, 6, 10 इंच टेलीस्कोप से, बट नई टेक्नोलॉजी से या नई टेलीस्कोप की कुछ और कैपेसिटी होगी तो नॉट वेरी श्योर। तो ये जो हम देख रहे हैं इसको एंट नेबुला या मेंजेल 3, मेंजेल 3 क्यों, क्योंकि जो मेंजेल नाम के साइंटिस्ट थे डोनाल्ड हॉवर्ड मेंजेल, उनकी बदौलत इसको हम ढूंढ पाए। So this is bipolar planetary nebula in Norma constellation. Apparent magnitude to be precise 13.8, located at 8,000 light years from solar system. और इसका निक नेम जो एंट नेबुला है वो शेप रिसेम्बल्स हेड एंड थोरैक्स ऑफ एन एंट एंट। तो ये चींटी की तरह इसका बहुत सारा साइज शेप टेंटेकल्स दिख रहे हैं, इसकी वजह से इसको एंट नेबुला बोला गया, ओके। अभी इसमें द इजेक्शन ऑफ गैस फ्रॉम द स्टार एट द सेंटर हैज intriguing symmetrical pattern unlike the chaotic pattern expected from the ordinary breast.
कोई भी तारा मरता है, सुपरनोवा हाइपरनोवा रिएक्शन, हमने इसकी थ्योरी नहीं कवर की लगता है, इवोल्यूशन ऑफ द स्टार्स। तो ये तारे मरने की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी रिएक्शन की। इसमें आप नॉर्मली देखोगे कि इस तरीके से जो यहाँ पैटर्न दिख रहा है, उस तरीके का पैटर्न नॉर्मली नहीं होता है। तो हम जब एचएसटी की बात करते हैं, हबल स्पेस टेलीस्कोप की, अभी आप जेम्स वेब की बात करोगे, तो दिस इज बेसिकली द एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड हाउ दिस स्पेरिकल होता है ना स्टार, द मोस्ट हाइड्रोडायनेमिकली स्टेबल इज सर्कुलर स्पेरिकल शेप। the spherical star can produce such a different prominent non-spherical symmetries in a gas ejection। ये सारी जो आपको ऐसे ऐसे लग रहा है ना, लाइनें लाइनें है कि नहीं तो पटाखा फूट गया, ये सारी जो लाइनें हैं वो गैस इजेक्शन की लाइनें। तो ये सब कैसे होता है, ये जानने के लिए हम लोग ये जो हाईफाई टेलीस्कोप है उनका इस्तेमाल करते हैं। वन पॉसिबिलिटी इज दैट द सेंट्रल स्टार ऑफ दिस मेंजेल 3 हैज क्लोजली ऑर्बिटिंग सम कंपेनियन। अभी एक स्टार को दूसरा स्टार क्लोजली ऑर्बिट करता है, तो चांसेस है कि एक दूसरे के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में आके एक दूसरे को खींचने लगे, और उसकी वजह से गैस आउटफ्लोइंग जो है उसके इस तरीके से आपको टेंटेकल्स या फिर आउटब्रस्ट नॉन सिमेट्रिकल दिख सकते हैं। ऐसी कई थेरी, ये एक थेरी है, दूसरी एक थेरी है, इन सबको जोड़ मरोड़ के हम सिर्फ एक इमेजिनरी और पोस्टुलेटेड थेरी दे सकते हैं। बट जब अच्छे टेलीस्कोप इसको ऑब्जर्व करेंगे, एनर्जी फ्लो पैटर्न देंगे, उसके पीछे कौन सपोर्टिंग बॉडी है वो देखेंगे, तो हमें एग्जैक्ट आइडिया आता है। एक तारे का ये पैटर्न समझने के बाद उस पैटर्न को हम लोग नॉर्मली दूसरे तारों के लिए जोड़ने समझने लगते हैं। अभी आप बोलोगे शुरुआत में जो लेक्चर हो रहे थे उसमें हम लोग काफी इंटरेस्टिंग बातें करते थे, थोड़ा इंटरनल द एनर्जी फ्लो फिजिक्स ये सब में जाऊंगा, क्योंकि हम काफी मैच्योर हो गए। 45 लेक्चर जिसने सुने वो अभी ये थोड़ा सुनना पड़ेगा, भले आप 7वीं कक्षा में हो, 8वीं में हो, 9वीं में हो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड अंडरस्टैंड कि साइंस इज नॉट सो इजी। आपको कुछ चीजें समझनी पड़ती है, समझने के लिए फिर से पढ़नी पड़ती है, पढ़ने के बाद फिर से समझने के लिए एक्स्ट्रा रीडिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको ये तकलीफें होंगी। ओके, ये चार्ज जो है वो यहाँ पे इस तार के मामले में 1000 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से भी मूव हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम, नहीं थोड़ी देर नहीं, थोड़ी देर बाद अगर वक्त मिले तो हम ये जो पार्कर प्रोब है सोलर प्रोब उसकी बात करेंगे। जब वो लास्ट ऑर्बिट में रोटेट हो रहा होगा तो उसका स्पीड होगा तकरीबन 200 किलोमीटर पर सेकेंड। अभी बोलने में सुनने में ये ठीक है, बट 200 किलोमीटर पर सेकेंड मतलब यहाँ से शायद महाबलेश्वर वगैरह जाए। आप ऐसा बोल सकते हो कि मुंबई से आप पहाड़ जाके फिर से वापस आ रहे हैं, इतना एक सेकेंड में आप कर रहे हैं। तो दैट्स द डिस्टेंस व्हेन वी टॉक। तो यहाँ तो हम बात करें कि 1000 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इसका आउटब्रस्ट लेयर जो है वो मूव करता है। सो दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दिस एंट नेबुला। NGC 6067 ऐसे कई नंबर्स है जो ओपन क्लस्टर्स हैं नॉर्मा कॉन्स्टेलेशन में, ranging in the magnitude of 5.6 magnitude, and the distance approximately few thousand kilometers from 3000 light years from our solar system। तो अगर अभी हम आगे के चित्र की तरफ चले तो ऐसे ही किसी क्लस्टर की हम बात करेंगे जिसका यहाँ पे बढ़िया से फोटो मिला। तो नाउ दिस इज दिस इज 6087 NGC, मतलब होता है न्यू जनरल कैटलॉग में इसको डेसिग्नेट किया है। ओपन क्लस्टर है, 40 स्टार्स है इसमें, एंड अपरेंट मैग्नीट्यूड 5.4 है, मतलब काफी पॉसिबिलिटी है कि ये विजिबल हो जाए छोटे से टेलीस्कोप से। 3500 लाइट ईयर की दूरी पे है। क्लैडवेल ऑब्जेक्ट 87 ऐसा उसको डेसिग्नेट किया गया है। इसके बारे में इंटरेस्टिंग पार्ट थोड़ा पढ़ेंगे कि इसको हबल स्पेस टेलीस्कोप के वाइड फील्ड कैमरा 3 ने कैच किया था ये फोटो। द ओपन क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ 40 स्टार्स। सेफिड पल्सेशन वेरिएबल है ये बेसिकली, मतलब सेफिड वेरिएबल। सेफिड अपने याद होगा जब मैं आपको सेफियस कॉन्स्टेलेशन सिखा रहा था तो उसमें कुछ तारों को हमने बोला था कि इनका एक पैटर्न है जिससे
इंटेंसिटी इनकी कम ज्यादा होती है कुछ पीरियड के बाद, तो उन पैटर्न को रिपीट होते हुए हमने आसमान के और तारों में भी देखा, तो इनको सेफिड वेरिएबल्स बोला गया। इस मामले में इस पर्टिकुलर क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे सेफिड वेरिएबल्स है। ओके, अभी उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन से हमें बहुत सारी चीजें समझने मिलती है कि भाई फार्दर द सेफिड वेरिएबल इज डीमर इट अपीयर्स, दैट इज ऑब्वियस, बट एक स्टैंडर्ड कैंडल है और मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और गैलेक्सी और नेबुला इन विच दैट पर्टिकुलर स्टार इज लोकेटेड। मालूम है मैं थोड़ा आज बोर कर रहा हूँ, बट अभी थोड़ा मैं थेरी ज्यादा लेने की सोचा। ये फाइन रिंग है, फाइन रिंग है। मैं पढ़ रहा था तो कुछ जगह गलती से फायर रिंग भी लिखा था, तो मुझे ये रिंग बड़ी फाइन लगी, तो मैं फाइनलाइज किया कि इसको फाइन ही लिखेंगे। मेरे लिखने से कुछ नहीं होता है, एक्चुअली भी शायद फाइन ही। तो ये फाइन रिंग नेबुला है, ढूंढा गया मिस्टर शेपले की तरफ से, तो इसको शेपले 1 भी बोला। ओके, दिस इज एन द एनुलस प्लैनेटरी नेबुला इन नॉर्मा कॉन्स्टेलेशन। मैग्नीट्यूड बहुत ऊपर वाला है, दैट इज 12.6, तकरीबन 1000 लाइट ईयर्स दूर है अपने से। सेंट्रल स्टार इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 14 व्हाइट ड्वार्फ। अभी सेंटर में आपको जो दिख रहा है वो आप देखोगे, इतनी इंटरेस्टिंग चीज है। आप जो ऊपर में देख रहे हो वो है 12 मैग्नीट्यूड वाली चीज जो को आपको दिखाने की कोशिश की जाए, तो ऑब्वियसली उसमें जो जो चीज दिख रही है वो इक्विवेलेंट है उसी इंटेंसिटी की जो 14 मैग्नीट्यूड की व्हाइट ड्वार्फ। ओके, एनी, it is discovered by the American astronomer Harlow Shapley in 1936. It is a 1.1 arc minute in diameter, about third of the light year across. Okay, तो ये भाई तकरीबन 1.1 arc minute का डायमीटर है। Hazy and aptly named the Fine Ring Nebula is unusual planetary nebula from when some stars in their final stages, जहाँ पे कुछ having expanded into the red giant phase, expel shells of gases, evolves into the white dwarfs. Most planetary nebulas are either spherical or elliptical in shape, और some in case of the even bipolar भी होते हैं। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है looks like a almost perfect circular ring. Astronomers believe that some of these more unusually shaped planetary nebulas are formed when the progenitor star is actually binary system. बाइनरी सिस्टम में से एक्चुअल एक स्टार के डेथ के बाद इस तरीके के प्लेनेटरी नेबुला बनते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों ने बोला है। ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द बाइनरी पेयर इज ऑलमोस्ट परफेक्टली फेस ऑन फॉर्म, our vantage point implying that the planetary nebula structure is aligned in the same. ओके, अभी ये जो है ये दिखने में बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही ये क्लस्टर है, ये यहाँ हमने नेबुला देखा, अभी हम कुछ क्लस्टर की बात कर रहे हैं। दिखता है बहुत ज्वेल पैटर्न जैसा, इसको नॉर्मा क्लस्टर स्पेसिफिकली बोला गया है। एबेल 3627 ऑब्जेक्ट है। एबेल फिर से वही उस नाम के साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा होगा। तो ये रिच गैलेक्सी क्लस्टर है नॉर्मा कॉन्स्टिलेशन में, 221 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है हमसे, मतलब तकरीबन 22 करोड़ लाइट। It's very difficult to observe because it is obscured by the dust. It lies in the zone of the avoidance region of sky that is obscured by the Milky Way galaxy. खुद मिल्की वे गैलेक्सी ही इसका विजिबिलिटी ऑब्सक्योर करती है। क्लस्टर लाइज नियर टू द ग्रेट अट्रैक्टर ग्रेविटी एनोमली इन इंटरगैलेक्टिक स्पेस। अभी ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है ये मेरे लिए भी काफी नई रहती है, मैं पहली बार पढ़ता हूँ फिर सीधा आपके सामने बोल देता हूँ। तो ये जो इंटरगैलेक्टिक स्पेस में ऐसे कुछ वॉइड्स या कुछ स्पेसिफिक रीजन्स है, उन रीजन्स में होते हुए होने के कारण इसकी विजिबिलिटी बहुत कम है। फिर भी इसको हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसको इस तरीके से इमेज किया गया। अभी न्यू हबल इमेज शो स्पाइरल गैलेक्सी, फोटो दे, ये है ESO 137 बैकग्राउंड क्लस्टर एबल 3627। ओके, image capture selection and backdrop stunning details. So dramatic, intense blue streak streaming outwards.
ये जो अभी मालूम नहीं मेरा माउस दिख रहा है कि नहीं आपको, यहाँ अगर आप इसको जूम करोगे तो ब्लूइश इजेक्शन आपको दिखेंगे। उसी की स्पाइरल गैलेक्सी में हम बात कर रहे हैं। तो ये थी ESO 137। नाउ वी गो टू द मेंथल ऑब्जेक्ट 1। ये भी एक बाइपोलर प्लानिटरी नेबुला है, मैग्नीट्यूड 12 है, 3400 लाइट ईयर्स की दूरी पे है हमसे। इस पर्टिकुलर नॉर्मा कॉन्स्टिलेशन में और बहुत सारे ओपन क्लस्टर, क्लोज क्लस्टर है। एक एक के पीछे मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना ही कि मीटियोर शावर यहाँ से नहीं होता है ऐसा लगता है, बट एक वीक, रिलेटिवली वीक मीटियोर शावर है गामा नॉर्मिड्स, which is active in March 7 to 23, peaks on the 15, and ज्यादा रेडिएट मिलती है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा बोला नहीं है। सो नाउ वी विल गो इनटू द टेलीस्कोपियम के बाद हम दूरबीन में, इसके नॉर्मा के बाद हम टेलीस्कोपियम में जाएंगे। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने देखा कि इसके दो ही तारे हैं ऑलमोस्ट जिनको हम पॉइंट कर सकते हैं, और उसी छोटी लाइन को टेलीस्कोपियम बोला गया। केप ऑफ गुड होप जो सदर्न पॉइंट है साउथ अफ्रीका, वहां से इनके नामकरण हुए। और टेलीस्कोपियम नाम सिर्फ इसलिए दिया गया क्योंकि गलेली गैलीलियो गैलीलियो के बारे में यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि उनका बर्थडे कब है। कल उनका बर्थडे, मतलब बर्थ बोला तो बर्थ एनिवर्सरी वट एवर से। तो 15 फरवरी इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गैलीलियो। गैलीलियो ने 1610 में दो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके हंस स्लीपर जो सोचा था या बनाया था टेलीस्कोप, उससे प्रेरणा लेके उन्होंने अपना टेलीस्कोप बनाया। यह मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। और उस टेलीस्कोप से एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन में एक क्रांतिकारी बदल लाया, रिवोल्यूशनरी, ओके, चेंज। और उसके चलते उनके मेमोरी में इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन को टेलीस्कोपियम बोला गया। एक्चुअली नाम अलग अलग है, वो देखते हैं कुछ आगे उस तरीके का देखने मिलता है तो पढ़ लेता हूँ, चाहिए तो मैं आपके लिए। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि ये गैलीलियो की मेमोरी में लाइकिल, जिनका हमने नाम लिखा थोड़ी देर पहले सुना था, उनके ऑब्जर्वेशन से एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन उसको आगे जाके टेलीस्कोपियम करके लिखा गया। तो ये रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप है। मतलब आप देख सकते हैं इसको 45 डिग्री पे वगैरह कुछ नहीं है, मतलब नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ भी नहीं है। ऊपर की तरफ नहीं है मतलब ये रिफ्लेक्टर टाइप का है कि सामने एक बड़ा रहेगा और उसके नीचे एक छोटा वाला ये रहेगा। क्या बोल रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस रहेगा, तो ये रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप हो जाता है। तो ये है आपका रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप। यहाँ उसके डिटेल्स मैंने लिख दिए ताकि आपको चाहिए तो आप भी पढ़ सकते हो। आपके लिए मैं थोड़ा बता ही देता। ये बहुत ही फेंट कॉन्स्टिलेशन है। इन द इवनिंग ऑफ द जुलाई ये हाईएस्ट इन द स्काई आपको दिखेगा, बट सदर्न साइड में तो कितना भी हाईएस्ट दिखे तो सदर्न हॉराइजन के आसपास ही रहेगा। ये लिखा है कि लैटिन में टेलीस्कोप है वाज अप्लाइड टू द एरिया ऑफ द स्काई व्हेन निकोलस लाइटली इन 1756। पहले तो एक एरियल टेलीस्कोप बताया गया था, रिफ्लेक्टर विच कंप्रेसेस लेंस सच एज टू द वेरी लॉन्ग पोल। धीरे धीरे इसका नामकरण प्रोफाइल चेंज किया गया। The stars which make up the telescopium are of the fourth magnitude and this sky area contains only one bright deep sky object NGC 6584। तो ये पहली बार उसका नाम दिया गया 1756 में। स्काई एरिया 113 के बराबर है, फिर भी 251 स्क्वायर डिग्रीज है, मतलब नॉर्मा के 165 डिग्री स्क्वायर डिग्रीज के कंपैरिजन में ये ज्यादा है। मेसियर ऑब्जेक्ट, नो मेसियर ऑब्जेक्ट, नेबर्स वही सब, इंडस, माइक्रोस्कोपियम, पाहो, करोना, ऑस्ट्रेलियस एक्सेट्रा। यहाँ जो मैग्नीट्यूड वगैरह लिखे उसमें नहीं जाएंगे। यहाँ हम टेलीस्कोपियम का पिक्टोरियल व्यू देख सकते हैं और यहाँ उसी को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। यहाँ आपको दिखेगा कि टेलीस्कोपियम से दिखाया है। वही चित्र मैंने कॉपी किया था, थोड़ा मैं बड़ा करते जा रहा हूँ ताकि आपको फील आए कि उसको मैंने घुमाया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐसे टेलीस्कोपियम, यही बगल में ही स्कॉर्पियन का डंक है,
ओके, इसमें शौला है, ओके, लतीफ है। तो अभी हम इसको छोटा करते हैं ताकि आपको एक आइडिया आए कि ये कैसे दिख रहा था। नाउ लेट्स गो फर्दर। ये एनजीसी 6584 the globular cluster in the constellation Telescopium and is 45,000 light years from us. It is an Osterhoff type 1 cluster. Contains 69 variable stars which are RR Lyrae. Okay. अभी लायरा मतलब स्वरमंडल, इस कॉन्स्टिलेशन में भी एक टाइप का वेरिएबल तारा मिलता है जिसका अपना एक प्रॉपर्टी है कि एक स्पेसिफिक पीरियड में उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जितने भी तारे हैं उनमें से 45 प्लस 15, 46 प्लस 15 मतलब तकरीबन हम बात कर सकते हैं 61 वेर आइडेंटिफाई एज अ टाइप ऑफ वेरिएबल्स, 4 इक्लिप्सिंग बाइनरीज हैं एंड 3 लॉन्ग पीरियड वेरिएबल्स। इसका इस अपने गैलेक्टिक सेंटर से ये पर्टिकुलर क्लोज ग्लोबुलर क्लस्टर जो है वो 4 किलो पारसेक पे है गैलेक्टिक सेंटर से, एंड 2.7 किलो पारसेक है गैलेक्टिक प्लेन से। As is the typical for metal poor globular cluster, NGC 6584 has enhanced concentration of alpha elements relative to iron. अभी ये आपको समझ में नहीं आया तो इतना ही समझ लीजिए कि ये जो फ्यूजन रिएक्शन होता है तारों में जिससे एनर्जी जनरेट होता है, सन के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि 600 बिलियन किलोग्राम हाइड्रोजन एक सेकंड में खर्च करके या यूज करके क्लियर फ्यूजन से अरबों अरब अर्ग या जूल्स बनती है, और वो एनर्जी को हम तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पर 15 करोड़ किलोमीटर ट्रैवल करके पहुंचने में बहुत कुछ उड़ जाता है, सिर्फ बिलियनवा हिस्सा रहता है, फिर भी पृथ्वी के सरफेस पे 1500 के आसपास वैट पर स्क्वायर मीटर पहुंचता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो हो रहा है फ्यूजन रिएक्शन, एक अल्फा होता है, एक ट्रिपल अल्फा प्रोसेस होता है, और इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन का सम्मिलन या हाइड्रोजन हेलियम या हेलियम का किसी और के साथ, इस तरीके से हेलियम का किसी और एलिमेंट के साथ होके सम्मिलन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन होके जो आगे के एलिमेंट्स बनते रहते हैं, इसी प्रक्रिया की जो स्टेजेस है उसको बोला जाता है अल्फा लैडर। ओके, तो ये जो अल्फा प्रोसेसेस है उनकी यहाँ पे बात हो रही है। अभी छोटे बच्चे तो सो ही गए होंगे, मुझे माफ कर। तो आज का ये टेलीस्कोपियम का किस्सा हम यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फिर से दिखेगा कि मैग्नीट्यूड 1 का जो चित्र नीचे दिखाया बड़ा वाला सर्कल, उसका कोई अस्तित्व नहीं है टेलीस्कोपियम के चौकोन में। यहाँ पे 4 के आसपास वाले ही सब दिखे, मतलब टेलीस्कोपियम भी रात के आसमान में हमको दिखने से रहा। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप जो लास्ट टाइम भी नहीं किया था, इस बार भी करना है कि नहीं वो आप बताओगे, या फिर ये 2 कॉन्स्टिलेशन जो हमने कवर अप की इसके बारे में आपको कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। ओके सर, आर द थोरैक्स एंड द हेड पार्ट्स आल्सो गैस प्रोजेक्शन? हाँ, होता क्या है कि जिस समय पे इसको शूट किया गया उस टाइम पे वो नेबुला का एक्सपांडिंग पैटर्न्स किस तरीके से था, ये सारी एक, हाँ, नहीं वो स्क्रीन बीच बीच में आ रहा था, ये सारी चीजें उस पे निर्भर, जो नेबुला का पैटर्न, रिंग या लोब्स हम देखते हैं वो एक्चुअली बहुत पुराना है, जितना लाइट ईयर से दूर है उतना पुराना है। जो हमने फोटो निकाला वो हमारे इक्विपमेंट इफिशिएंसी पे भी डिपेंडेंट है। तो जो पैटर्न दिखा उसमें आप थोरैक्स की बात करेंगे, हेड पार्ट्स की बात करें, एवरीथिंग इज गैस ओनली। सर्टेन थिंग्स आर विच आर इजेक्टिंग विल शो यू सम स्पाइक्स, तो स्पाइक पैटर्न दिखेगा, बट वो भी कई सालों से वहां पे उस पैटर्न फॉर्म में है। कुछ चीजें निकल जा रही है, वो अगर सपोज बिलियन बिलियन केजी भी है तो भी विजिबिलिटी कुछ नहीं होगी उसकी टेलीस्कोप। जब हम बात करते हैं जो दिख रहा है उसकी, तो वो हमारे इमेजिनेशन से भी ज्यादा क्वांटिटी में है, ये आप पक्का समझ। और कुछ? अभी ओके, आवाज आ रही है, इसके बारे में सबने लिखा है, जो भी जिसको बोलना है उधर लिखना है चैट बॉक्स में, हाथ बीत उठा के कुछ नहीं होगा। ओके, माइक ऑन करना अलाउड ही नहीं, क्योंकि आपके घर के आवाज आने लगते हैं सब। जैसे थोड़ी देर पहले देखा होगा आपने कि हमारे यहाँ सब खराब हो गया था,
टाइम तो मैं मैडम से जितना भी बात कर रहा था वो सारी बातें आप लोग सुन रहे होंगे ब्रेकिंग मोड में, तो उसको मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से भी वही आए। तो चैट बॉक्स में आप बिंदास लिख सकते हो जो आपको चाहिए हो। जेम्स वेब टेलीस्कोप को लास्ट टाइम हम लोगों ने थोड़ा कवर किया था, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इसलिए है क्योंकि एफर्ट्स चल रहे हैं तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1996 से लेके 2005 में इसके डिजाइन को रिविजिट किया गया। मतलब 2000 का 1996 में शुरू किया गया, 2007 में इसका प्लान था लॉन्चिंग का। तब तक एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस थे 500 मिलियन यूएस डॉलर्स का बजट था। 2005 में मेजर रीडिजाइन हो गया और उसके चलते फिर वो बढ़ते 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 बीच में पेंडेमिक आ गया। अभी हाल ही में उसको लॉन्च किया गया, यू ऑल नो, दैट इज 25 दिसंबर 2021। प्राइमरी मिरर जो है इस पर्टिकुलर का वो ऑप्टिकल टेलीस्कोप इलेमेंट है, कंसिस्ट ऑफ द 18 हेक्सागोनल कॉर्नर मिरर्स मेड ऑफ द गोल्ड प्लेटेड बेरिलियम। इट कंबाइंस टू क्रिएट 6.5 मीटर मतलब 21 फीट डायमीटर मिरर कंसिडरेबली लार्जर देन हबल, जिसका 2.4 मतलब तकरीबन 2.5 मीटर का या 8 फीट का मिरर है हबल का, और इसका 6.5 मीटर मतलब 21 फीट का है। मतलब 8 त्रिक 24 भी बोले तो भी 3 गुना बड़ा है ये। अनलाइक हबल स्पेस टेलीस्कोप विच ऑफर्स द नियर अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल नियर इंफ्रारेड 0.1 to 1 माइक्रोमीटर वाले स्पेक्ट्रा, ये जो है ये लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम द लॉन्ग वेवलेंथ विजिबल लाइट थ्रू मिड इंफ्रा मतलब 0.6 to 28.3 माइक्रोमीटर तक ऑब्जर्व कर पाएगा। ये बड़ी उपलब्धि है और ये टोटली इफिशिएंटली हबल स्पेस टेलीस्कोप को रिप्लेस कर पाएगा, ये एक्सपेक्टेशन। उसकी वजह से हाई रेड शिफ्ट ऑब्जेक्ट आर टू ओल्ड फॉर द हबल और टू डिस्टेंट, क्योंकि दूर है ना वो, जितना दूर जाएगा उसको रेड शिफ्ट होगा, जो करीब आ रहा है वो ब्लू शिफ्ट दिखाएगा। तो दूर जाने वाली चीजों के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप थोड़ा इनएफिशिएंट हो जाता था। उस कंपैरिजन में ये जो चीज है जेम्स वेब टेलीस्कोप वो ठीक से will be deployed in space near sun and Lagrangian point 1.8 kilometers from the earth। ओके, मतलब तकरीबन एवरेज डिस्टेंस जो मून का है उसको 3.9 टाइम्स। इसके लिए अभी वहां पे अगर ये इंफ्रारेड वगैरह एनर्जी सोर्स का ही इस्तेमाल करके हमें सिग्नल या जानकारी का इकट्ठा करने वाला है, तो जरूरी है कि इस तक कोई भी हीट न पहुंचे, रिफ्लेक्टेड हीट भी ना पहुंचे। इसलिए इसको लेग्रांजियन पॉइंट पे तो डाल दिया, पर उसको हीट शील्ड, सन शील्ड देनी पड़ी, जो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम कोटेड कैप्टॉन की बनी हुई है। विल कीप इट इट्स मिरर एंड इंस्ट्रूमेंट बिलो 50 केल्विन मतलब -223 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने नीचे तापमान में रखने के लिए इतनी सारी मशक्कत की जिसके इफेक्ट है नहीं, मुझे उसका कोई इतना अंदाजा नहीं है, पर बोल रहे हैं कि कुछ इमेजेस ही हमको ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, शुरुआती तौर पे जो तारे बने, गैलेक्सीज बने, नेबुलास बने, इनके बारे में काफी गहरी जानकारी दे पाएगा ये जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो इसके आपका काम है बेसिकली ये कि आप ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहे ताकि आपका नॉलेज डोमेन बढ़ता है। तो यहाँ पे जो मैंने डायमीटर वगैरह बोला 21 फीट का, वो यहाँ पे आपको देखा जा सकता है। और उसको रैप करने के लिए ये सारी जो एल्यूमिनियम शीटें हैं वो एक अलग पैटर्न में रैप की गई है। आप यहाँ पे एंड पे देख भी सकते हो जहाँ पे मैं माउस घुमा रहा हूँ कि इसको पूरे को वो लोग खोल देते हैं और फिर खोलने के बाद वो किस तरीके से बनता है ये पूरा इकट्ठा करके रैप, सॉरी क्या कर रहा हूँ, ये खोलने वाला चित्र में लाया किया लास्ट टाइम का, में जाएंगे नहीं लगता हम लोगों ने नहीं। सो लेट्स गो बैक, और फिर भी रुकना पड़ेगा। जेम्स वेब पे हम कुछ से बोलेंगे और किसी ने कुछ डाउट लिखा क्या मैं देख नो डाउट।
कितने लोग हैं यहाँ पे? एंजल, अविरत, काव्या, विज्ञानकर, महादेवराव, गौरीश, शिवा, मैत्रेय, विशाल। सो आज के पढ़ा जो पढ़ाया उसके बारे में कुछ भी डाउट है, या फिर आप किसी और तरीके से या किसी और चीज के बारे में जानना चाहते हो तो बताइए। लेक्चर नंबर कौन सा था वो? 43 44 आई थिंक, हाँ। उसके ऊपर मतलब वो जो 10th का स्पेस मिशन नाम का सिलेबस दिया आपको, उसके ऊपर सवालों के जवाब देने होंगे, तो एमसीक्यू टाइप की टेस्ट ली जाएगी, तो उसको पढ़िए। वो किताब जो है वो मैंने ग्रुप में डाल दी थी, उसका 10th चैप्टर ही डाल दिया था ताकि आपको एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े। तो वो सारी चीज, एग्जाम अगर आपका स्कूल का है या कोई और इम्पोर्टेंट आप एग्जाम दे रहे हो तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं। डोंट फॉरगेट, एस्ट्रोनॉमी क्लास इज एक्स्ट्रा general awareness program to check your inclination towards specific field of science called astronomy or related things। अगर इसमें आपकी दिलचस्पी है कि नहीं, ये जानने के लिए हम कर रहे हैं। हाँ, तो अगर आपके एग्जाम्स आते हैं या आपके पास कोई टाइट और शेड्यूल है, आप ये सब चीज पे नहीं भी ध्यान देंगे तो आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको वीडियो भेजते ही रहते हैं। सो प्लीज डू नॉट अननेसरी ट्रबल यूर सेल्फ कि आपका कुछ और चल रहा है शेड्यूल और आप इसमें बेवजह तकलीफ दे को पार्टिसिपेट करोगे तो नहीं चलेगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझे आज भेजा था कि सर हमारी एग्जाम्स वगैरह आने वाली है। अभी मुझे समझ में नहीं आया कि तुम्हारा सवाल क्या है षणमुखा शिवा मैत्रेया। 23 मिनट पहले जब तुमने सवाल पूछा तो 23 मिनट पहले मैंने जवाब दिया। अभी तुम सो रहे हो कि ध्यान नहीं दे रहे हो किसी पूछने का इसलिए पूछ रहे हो? रिकॉर्डिंग देख लो, मैंने जवाब दे दिया तुम्हारा। ओके, तो लेटेस्ट तुम ये रिकॉर्डिंग कल डाल दूंगा मैं, उसको देख लेना, तुम्हारे सवाल का जवाब हो गया है। तो हम, अच्छा अच्छा, लैंग्वेज का इशू है? कौन सी लैंग्वेज में बोलना है, बोलना पड़ेगा तुमको। लिखो लिखो जल्दी, मैत्री या शिवा, और एल्स यू कैन स्विच ऑन माइक, यू हैव जेन्युइन प्रॉब्लम। ये मैं समझ, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। नो सर, आई माइट हैव नॉट हर्ड। हाँ बोलो। Yes, sir. Like, I was listening to the lecture, sir. What happened was like for me Hindi is my second language, so I understand what you're saying in general, but sometimes specifics it doesn't come across. That's it. You are in which class? Eighth grade, sir. And you, what is your mother tongue? My mother tongue is Telugu, sir, but I'm from Bangalore, so we mostly speak in English itself at the class. But at home you speak what? Which language? Telugu, sir. And in school, you are from Vaidehi school. Yes, sir. Acha. So normally in school, most of the people they speak in Hindi, English, and their mother tongue. But you are in different area, so you won't be knowing Kannada. So probably Telugu you won't be speaking there. So probably I was expecting that you may be knowing Hindi and English. So I will try to keep now English part of it extra. So for your questions answer, please try to understand that thorax and head part are also gas projection. When we say that anything has come to the nebulous stage, it's actually completely gas cloud. Now that gas cloud will have variation in the composition. It will not be only hydrogen cloud, it will have a lot of contents. So when you say some spikes are coming, those are the outburst. Matlab, there is some energy reaction and something is coming out as a jet, then those tentacles like things you are seeing. But when you talk about the internal body itself, or some globular or some, what you can say, some balloon shape is coming out, then also it is a wavefront of the gas only, which is expanding because of the sudden pressure rise in that particular core. So everything is gas only, and that is what I have already explained. But really speaking, if language is issue, then I will try my best that
I should communicate in Hindi, English, both languages. Okay. So it's now 1:55 Sir, normal. yes, sir. Thank you, sir. Like it's not only because of the language. I will also listen a little closer. I will also try my best. Then that's fine. That's fine. No problem. But one thing all of you understand, you all are school going kids. So priority is school study. Okay. Priority is your targets. Like somebody is preparing for GE after some years. So this is some parallel activity, not very serious, but it doesn't mean that it is free of cost. So you will not pay attention. You have to pay attention also, and you have to see to it that in case for future it you find it interesting, then if you are studying it for the 1 hour or 2 hours, you should increase the study period because of your interest. Instead of 2 hours, you can study for 3 hours, 4 hours. But then you should not neglect your major studies which are related to the academics and your particular standard. Okay. So today we stop here. Thank you very much. Good night. One thing missing is observation. Now local people are supposed to come here and observe the celestial beauty by my telescope, but many of them not finding time, and some senior people are very keen on joining. But then the conditions, sometimes pandemic, sometimes some issues, sometimes I'm not feeling well, so many troublesome issues. Let us sort it out by the February end, or at least by the March end. By March end, I'm expecting one observation we should go through at my residence, though the observation possibility is not so good because I also stay nearby city, but then probably something we will be able to see. So everybody check out, or at least send me your exam days, so we can plan something by the end of February. In case it is not end of February, then at least mid of March or end of March. Okay. Please do send me those patterns by my personal number. Messaging is preferable when you talk about your personal schedules of the class. Okay. Thank you so much. We can stop here. Good night. Take care. Bye bye. Can leave class. Thank you, Thank sir. you. Thank you. Good night.